मेरा स्पीकर अपना अपना वापस वो हो गया. We're on Facebook Live. Wait. Hello people. Hello. Hi. Today we are here to talk about a very collective discussion topic of the previous three topics, and it's called communication for creating financial reality to upgrading relationships. And yes, before we talk about that, I would like to say we have Kavita Kapoor Khalsa over here, who's a life coach. I would say happiness coach, access consciousness certified facilitator, relationship expert, healing expert, and I personally know her for her entertainment skills and comic timings. So yes, Kavita, hi, how are you? Hi, Radhika, and this is Radhika Parmar, who's my co-host for today, and she's a growth hacker. We work together to create, for creating a different reality for a lot of people, including ourselves. How does it get better than that? so, Yes. thank you for being on Married or No Married Expose, and I'm glad you watch it on and off, whatever works for you, because today's topic is little um, tongue twisting. Can you repeat the topic? Yes, the topic for today is communication for creating financial reality to upgrading relationships. Could you explain me this topic? I know because I like to integrate everything and create one sentence out of it. Well, these are three topics woven into one. And to begin with, we had a lovely Isha Baba coming on the first episode of New Year's, after New Year rather. So, and we spoke about how important is money in a marriage. Okay, and from there went on to upgrading your life. Time to time in a relationship with Vasudha Arora, another yummy facilitator. And the last episode that you guys watched was with Shweta Chadda, and we spoke about communication in marriage. How important is that? Now, having said that, when you have communication as the cornerstone or the keystone of your relationship, creating a relationship, what happens is that you end up creating more money flows for yourself, and that's also prevalent with the fact that if you kind of acknowledge you and you start communicating with yourself, and with your body and with each and every molecule, would you not have enough money flows in your reality? And as you move ahead in this space of evolution and growing up, and growth path is what we talk about, would you not want to keep upgrading your life from time to time? It's something like when you were a kid, you used to be having milk from a bottle. Okay, एंड बड़े होके तो आप मिल्क ही नहीं लेते हो चाय लेते हो, वो हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है. सो अब हम ये नहीं, हाउ अबाउट पेरेंट्स सेइंग तुम वो नहीं रह गए जैसे मेरे छोटे प्यारे बच्चे होते थे. द सेम थिंग हैपेंस इन आवर मैरिज. जब थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ती है तो हम उसको एक दूसरे को ताना मारना शुरू कर देते हैं, तुम वो नहीं रह गए जिसको मैं पहले जानती थी. तो ना, तो पॉइंट इज कि जो नहीं रह गया तो उसको अपग्रेड करने की जरूरत है. हम अपने घर की सफाइयां भी दिवाली टू दिवाली कर ही लेते हैं. तो अगले 2-3 साल में तो आपस के रिश्तों में भी जो चीजें नहीं काम कर रही है उसको फेंकने की जरूरत है, तो फेंक देना चाहिए. थोड़ा हल्का होंगे, ऊपर उठेंगे, तो रिश्ते भी ऊपर उठेंगे. हम उसको नीचे खींचते जाते हैं कि नहीं, नीचे कैसे ला सके तुमको, कैसे धरती पे पटक सके. So I mean that is my way of doing emotional drama and intensity with relationships. Yeah, so वो upgradation तो तभी हो सकता है जब आपका कम्युनिकेशन बराबर है, और ये दोनों चीजें होंगी तो मनी फ्लोज तो एक बाय प्रोडक्ट होता है. That was very nice way of explaining how um, like Diwali ka kachra throw karna and और relating जिंदगी it में to कचरे को करना, relationships. दोनों जरूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो हमें फिजिकल चीजें शायद ज्यादा समझ में आती हैं, और इमोशनली और मेंटली हमें लगता है नहीं ये तो हमारा सामान है, इसको रखना ही है. और पुरानी बीती बिसरी बातें जो हैं हम याद करते रहते हैं, और उसी से अपनी जिंदगी को खराब करते रहते हैं. व्हाट इफ वो वहां है, उसको छोड़ देना चाहिए. दैट्स हाउ आई लुक एट इट. उसको कहते हैं अपग्रेडिंग योर लाइफ. भाई फोन का सॉफ्टवेयर भी तो हम अपग्रेड ही करते हैं, राइट?
एप्पल वाले तो हर थोड़े दिन में भेज देते हैं, फिर वो स्पेस खाली हो जाती है जो आपकी होती है, देन यू आर फोर्स्ड टू बाय अ न्यू फोन। आई मीन, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप नई बीवी या नया पति ले आए, बट आई एम सिंपली सेइंग हम ही नए हो सकते हैं एक दूसरे के लिए मजे से। So let's take all the three topics one by one. You talked briefly about all of them. First, we can talk about communication. Could you tell how important is communication in marriage? Are you giving a silence? Giving that silence. Now, does that make it good, happy, joyful for you, or you're like, बोल ना, कुछ तो बोलो? Now that is how important communication is. क्योंकि अगर आप एनर्जी की भाषा समझ सकते हो तो ब्रिलियंट, आंखों ही आंखों में इशारा करके बात कर लो। लेकिन पॉइंट है, वो इशारे अगर नहीं समझ में आते तो कभी कभी बोलने की जरूरत होती है। तो कम्युनिकेशन से तो यही मतलब है कि एक दूसरे को जानना अगर है तो बोलोगे नहीं कि भाई दर्द हो रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा? हम ये सोचते हैं हर कोई अंतर्यामी क्यों नहीं होता है, पर वो नहीं होता है और होता भी है तो उसे फिर भी सुनने में अच्छा लगता है। तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप, फॉरगेट मैरिज, किसी भी रिश्ते के लिए। अगर आपसे भी मेरा अगर कुछ मेरे को काम करना है और मैं बोलूंगी नहीं, बोलूंगी तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, यू नो, इट विल रूइन एवरीथिंग। तो हम उसी बात का शोक मनाते रहते हैं कि अगर बोल देंगे तो शायद शोक नहीं मनाना पड़े। That is brilliant. That is a very nice step. तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कम्युनिकेशन जरूरी है किसी भी रिश्ते में? Of course, it's very important. Communication is this brick of the building. So, brick of a relationship where the relationship stands on. Without communication, there is no relationship at all. Not even with yourself. Are you communicating with yourself, with your body, with everything, every molecule in the universe that is there? You can talk to anything. पर हमें लगता है कि नहीं, जैसे ये भाषा हम यूज कर रहे हैं वही भाषा होनी चाहिए, सामने वाला जब तक नहीं बोलेगा तो हमें समझ नहीं आएगा। हमें क्या अपने जानवरों की भाषा नहीं समझ में आती है, वो क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे, गुस्सा है, प्यार करना चाहते हैं, जो भी है वो उस समय उनका समझ में आता है। तो लेकिन समझने की इच्छा होनी चाहिए। व्हाट अबाउट पीपल जो लोग बहुत सालों से शादी में है और कहीं खो चुके हैं with respect to communication, who have lost themselves and they don't know how to communicate anymore, and they find कि अब क्या करूं, and they are just living life as it is. They are not having fun with it. तो सबसे पहला तो मेरा होगा कि जिससे अगर भूल चुके हैं कि बात कैसे करना है, क्या करना है, पहले शुरुआत खुद से करें। खुद से तो पहले एडमिट करें कि वो कम्युनिकेशन मुझे चाहिए, तो मैं पहले खुद से तो करूं, मेरी खुद की जो दर्दें हैं या खुद का जो अंदर चल रहा है उसको पहले जानूं और समझूं और खुद ही से पहले बात करना शुरू करूं। एंड देन जब खुद से एक रिश्ता बनता है तो आप जाके दूसरे के साथ बनाना शुरू करते हो और या बात करना शुरू करते हो। मान लो सामने वाला आपको काटने को दौड़ता है, बिकॉज आमतौर से रिश्तों में यही देखा जाता है कि कुत्ता बिल्ली बन जाते हैं हम लोग। पर मैंने अच्छे वीडियो भी देखे जिसमें कुत्ता और बिल्ली दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ओके, नॉर्मली वी फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग, बट यू डोंट लव लाइक कैट्स एंड डॉग, राइट? दैट्स लाइक अनहर्ड ऑफ। तो what if you could just recognize the other person and give them their space and वो जो है वो है, पर आप खुद को तो अपने को स्पेस दो, जो आप हो वो हो। क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरा हमें स्पेस दे, वो नहीं हो पाता है, पहले खुद को देना होता है। एंड तब वहां से वो, और नहीं, इफ माय ओनली थिंग इज इफ इट डजंट वर्क फॉर यू, इट इज नॉट फॉर यू। नहीं अच्छा लगता तो बदलाव लाओ या फिर बदल दो। दोनों People, में से if you are listening, this was very important thing. Could you please repeat it one more time? अगर नहीं पसंद आ रहा है, फिर डजंट वर्क फॉर यू, बदलाव लाओ या बदल दो। आई मीन वही, अगर आपने कोई टीवी लाया है और नहीं चल रहा है, उसको फिक्स कर करके देख रहे हैं, तो एक दिन आती है ना जब आपका टीवी क्यों, गाड़ी, तो लोग कहते हैं ना थोड़े पैसे और जमा करो, एक साइकिल ले आओ, इससे अच्छा तो वो खटारा चलाने से बेटर है। तो आई मीन दैट्स एग्जैक्टली, अगर रिश्ते में दम नहीं है, अपने को इतना सक्षम करो कि खुद से एक अपना रिश्ता बनाओ और अपने को एंजॉय करना शुरू करो। हम सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारी दूसरे की है, हमें पूरा जॉय देने की, जो नहीं होता है। जो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी चॉइस होती है।
कोई आपको खुश या नाखुश कर ही नहीं सकता है। हम अपने को ही खुश और नाखुश करते हैं। तुमने ऐसा कहा इसलिए मैं अब दुखी हूँ, पर क्यों? I mean, तुम्हारे दुख का बटन जो है किसी और के हाथ में क्यों होना चाहिए? True, true. सो वो कम्युनिकेशन हमारी वहां खराब होती जाती है। तो कम्युनिकेशन कहाँ खराब है और उसको कैसे पलटना है या बदलना है, वो एंड सबसे बड़ा एलिमेंट जो मैं मानती हूँ कम्युनिकेशन में है, वो ह्यूमर है। अगर ह्यूमर नहीं है तो आपकी सारी डेफिनेटली वो पूरी जिंदगी जो है वो भारी सी लगती है। नो वंडर अभी तक सारे जो कपिल शर्मा शो हैं वो ज्यादा देखे गए हैं, क्योंकि लोगों के लाइफ में ह्यूमर कम है। तो वो 1 घंटा एटलीस्ट मिलता है हफ्ते का या 2 घंटा, जिसमें वो देखते हैं या स्टैंड अप या जो भी है। बट काफी हद तक लोग सिर्फ न्यूज ही देखते हैं। इसलिए दुखी है। तो We can now move on to next topic about financial reality, money in marriage. I have two questions. First one is how important is money in relationship, and second मनी, one is yeah, we can या go one by one. मनी इन रिलेशनशिप, यूं कहना चाहें तो इस रियलिटी के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट हैव मनी, यू रियली कांट, यू डोंट इमेजिन योरसेल्फ टू बी विद अ पर्सन हु डजंट हैव मनी. But having said that, is money the only reason why you should be with somebody? Answer is no. What if there is a person who makes you so happy but doesn't have too much money that you go out and create a lot of money for yourself, and that too is a contribution. तो पैसे को अगर हम पैसे के जैसे ना देखें और अब देखें कि वो एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है कि आप जाके इतना और कमा लो, तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी टू बी विद. तो लेकिन हाँ, हमारे आधे से ज्यादा क्योंकि अरेंज मैरिजेस होती हैं या इवन लव मैरिजेस, एंड दैट्स हाउ दे कॉल विमेन एज गोल्ड डिगर्स. सो बाय द वे, मैंने गोल्ड डिगर का एक डियो देखा यहाँ पे, बहुत गंदा था. सो दैट्स नॉट रेलेवेंट. लेकिन गोल्ड डिगर जैसा चीजें जो होती है हम देखते हैं ताकि हमको लगता है कि पैसे से हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी. पैसे से सुख और कंफर्ट आ सकता है, लेकिन पैसे से रिश्ते सॉल्व हो जाए ऐसा मैंने नहीं देखा है. इनफैक्ट रिश्ते बिगड़ भी जाते हैं. सो इफ दैट इज योर बेंचमार्क कि इसके पास पैसा बहुत है तो चलो शादी कर लो या रिलेशनशिप कर लो क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, देन वो चीजें ही मिलेंगी, फिर रिश्ता नहीं मिलता. So it's a choice you have to make whether it is. I personally, if you ask me, is it important? It used to be at one point of time. In absolute vulnerability, I'm saying this, कि एक वक्त पे ऐसा लगता था कि हाँ रिच होगा इंसान तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी. अनफॉर्चुनेटली मेरे जीवन में जो भी आए उनके ऊपर डेट्स ही चढ़े हुए थे. सो इट डिडंट मेक सेंस. एंड आई सेड, मैं दूसरों पे क्यों इतना निर्भर हो रही हूँ, खुद से क्यों नहीं मैं उम्मीद रख सकती हूँ कि आई कैन बी अ क्रिएटर ऑफ मैग्नीट्यूड. एंड फिर उसके बाद आई डिडंट हैव टू लुक एट एनीबॉडी विद दैट इंटेंशन कि ओके मैं इससे शादी करूं तो मेरे बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं. नो, दैट वाज डेफिनेटली नॉट द कॉल. एंड सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वुड बी व्हाट? So this is really interesting question. It's like in a marriage, uh, there's this money factor. If I had to explain it in Hindi, like husband ka paisa, wife ka paisa, tera mera. मेरा तेरा तेरा मेरा, यस. हम आधी And जिंदगी उसी में निकाल देते yeah, हैं. राइट, यू राइट. एंड दैट इज, वो कितना रेलेवेंट है इज व्हाट यू आर आस्किंग. yes, ओके. सो तेरा मेरा से वननेस, हम पहले ही एक दूसरे को सेपरेट करके देख रहे होते हैं और वननेस की बातें करते हैं. हम दोनों एक हैं बिल्कुल नहीं, हमारे बैंक बैलेंस अलग है. अब माय ओनली थिंग इज, इफ यू रियली वुड लाइक टू बी वन, then there has to be no difference and no distance between, comfortable distance जो हम कैरी करते हैं एक दूसरे के साथ वो नहीं होना चाहिए. बट हैविंग सेड दैट, व्हाट वर्क्स फॉर यू? अगर आपको पूरा ट्रस्ट नहीं है सामने वाले पे, go ahead and do whatever you would like to. But to bring about tera mera brings in a lot of separation. So we start a relationship with that separation and then we say that हम एक तो है नहीं, एक तो है नहीं. वो एकता कहाँ से so आएगी? there is no ideal thing that only man has to bring money, and there is no ideal thing that only a woman has to feel like a queen and be pampered. No, Even a man it's can both. be.
दोनों ही हार्ड मास का शरीर है, तो दोनों को ही इक्वल वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, या वो चीजें जो करनी होती हैं, एक घर संभालते हैं तो एक बाहर, या दोनों बाहर भी संभालते हैं तो दोनों घर भी संभाले, लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई डोंट थिंक कि उस वजह से तेरा मेरा की जरूरत है. हाँ, अगर आज की तारीख में यू कैन हैव योर इंडिविजुअल अकाउंट एंड अ जॉइंट अकाउंट, and that comes to say that, oh, we're together. But point is, जब हम दूसरे को 100% अपना मानते ही नहीं है, हम वो डिस्टेंस और गैप रखना ही चाहते हैं, then if that works for you, great, go ahead and do that. But if it doesn't, then change it and do what works for you. There is no set formula for this कि बट हाँ, नॉर्मल चर्चा में तेरा मेरा लाना जो है वो बहुत हेवी क्रिएट कर देता है. It's like you're together in crime and you're together in something great also. So दोनों ही चीजें होती हैं. Wow, that is so beautiful. हाँ, मतलब अगर हम कांड कर रहे हैं तो साथ मिलके कर रहे हैं, और कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हैं तो भी साथ कर रहे हैं. पर अगर वो नहीं है, because then otherwise why are you together? Like exactly, why you together. पहले के अगर रेफर करें हैं, पुराने जमाने में इतनी क्यों अलग नहीं होते थे लोग, तो इसी वजह से था कि जो आपका है वो हमारा, जो मेरा है वो आपका है, आपका है जो मेरा, लाइक. बट आज का तो ये है कि जो तुम्हारा वो भी मेरा है, मेरा तो मेरा ही है, तुम्हारा कुछ नहीं है. So yeah, I mean, that's how we've created relationships in this reality. It's very transactional now, and but if it works, as I said, transaction भी काम कर जाता है कई लोगों के लिए, and they're okay with it. But अगर आप उस कैटेगरी में अपने आप को नहीं पाते हो, don't make yourself wrong for that. And if you've given away everything that you had, good, it's okay. Don't make yourself wrong for that either. क्योंकि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप जाके और कमा लोगे, इसलिए आपने दे दिया. So I don't see wrongness in either thing. But yeah, I mean, tera mera kind of sounds very heavy to talk about, because I kind of grew up seeing my parents do that. So it is not fun to see that, to be honest. So I think to conclude, there is no ideal thing. It's just to have more of oneness and lightness. And lightness, yes. What works for you, हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी को नॉनवेज वाला ही प्रोटीन चाहिए हो, और मेरा स्प्राउट से काम हो जाता है. आई मीन, एग्जाम्पल दे रहे हैं. तो ये नहीं है कि तुम्हें नॉनवेज वाला ही प्रोटीन से ही प्रोटीन मिलेगा. इट्स लाइक एवरीवन हैज देयर ओन इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है, उसके हिसाब से अगर हम चलें और देखें तो मेरे ख्याल से बहुत सारा लिबरेशन हो सकता है रिलेशनशिप की एरिया में. Nice, that is so well said. Let's go to the final topic of upgrading your life from time to time. Not life, but marriage, to be specific. Yes. तो वसुधा के हिसाब से जब उन्होंने कहा था कि भाई इतनी सारी चीजें जब बदल जाती हैं, आप बदल रहे हो, रोजमर्रा की जिंदगी से बदल रहे हो, आप ग्रो अप हो रहे हो, अब आपके जो पहले लाइक्स थे वो अब नहीं है, और पहले की डिसलाइक्स अब नहीं है, तो कुछ एक समय में एक वक्त आता है कि जब आपको आपस में एक दूसरे से बात करनी चाहिए और अपने को अपग्रेड करने की जरूरत है, हमारे रिलेशनशिप को. क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम मान लो लव मैरिज है, तो लव मैरिज में हम सब कुछ करते हैं, राइट, स्टार्टिंग में पटाने के लिए. अब ऑब्वियसली शादी हो जाती है, कौन किसको फर्क पड़ता है. अब पुराने चावल तो पुराने चावल ही होते हैं, राइट. तो उसको उसी तरह से देखा जाता है. अब देखने का नजरिया जरूर होता है. अगर वो नजरिया बदलता रहे, अपग्रेड का मतलब यही होता है, वो देखने का जब नजरिया हमारा बदल रहा है, तो कंबाइंड नजरिया अगर हम बदलते रहे टाइम टू टाइम, तो वो बहुत आसान हो जाएगा. और एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की नई जरूरतों को समझना. पुरानी जरूरतें तो अब नहीं जरूरी है, लेकिन अब नई जरूरतें हैं, क्योंकि आपके जो फैमिली पिक्चर है उसमें बच्चे भी आ गए हैं, सारी चीजें हो गई हैं, तो अब डायनामिक्स जब चेंज हो रहे हैं, तो वो पुरानी बातों को क्यों रेफर किया जाए कि अब तुम वो नहीं रहे. I think this, whatever you said in the starting of the episode, that if you have past points of view and still operating in the current situation, that doesn't work. If that doesn't apply, then please upgrade. बिकॉज हम कितनी बारी झगड़ा भी करते हैं तो हम वो पास बातों को जरूर रेफर करते हैं ताकि हम किसी के ऊपर कंट्रोल पा सके, उसको नीचा दिखा सके. अरे पर वो तो वो 2 साल पहले की बात है, उसको अभी लेके क्यों आ रहे हो. कैन वी जस्ट अपग्रेड, लाइक, एंड नो, एंड KRAs, जैसे हम ऑफिस में भी काम करते हैं तो KRAs होते हैं. हर साल आपको अगर नौकरी को प्रमोशन में चाहिए
तो केआरएस बदलते हैं, राइट? अब आप मैनेजर हो, अब आपका डेजिग्नेशन बड़ा है, अच्छा वाइस प्रेसिडेंट हो तो उसके केआरएस तो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे. तो सेम वे, अभी आप स्टार्टिंग में नए नए बच्चे थे, शादीशुदा, बहुत मजा आ रहा है, ओके, अब तुम माँ बाप बन गए हो, ओके, अब तुम और बड़े हो गए, तो वो क्यों नहीं, मैं इतना टाइम की बात वेट करने की नहीं कह रही हूँ, बट हर 2-3 साल में क्यों रिव्यू नहीं करते हम अपने शादी को एंड अपने रिश्ते को, कि अब हमें क्या जरूरत है क्या नहीं है, व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग, एंड जो समथिंग दैट्स नॉट वर्किंग उसको जाने दो. इट्स लाइक, I think everyone needs to renew their oaths, vows they've taken during marriage, and क्यों नहीं होना चाहिए वो बदलाव, क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों हम फिर सीधा सीधा डिवोर्स डिवोर्स की बातें करते रहते हैं. भाई बदल लो थोड़ा सा अभी, ताकि वो अपने लाइफ में बदलाव आएगा, तो बदलने की इवेंचुअली जरूरत नहीं पड़ेगी, कि किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और पड़ेगी अगर आपको फिर मजा नहीं आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो भी बात, आई एम नॉट जजिंग यू फॉर दैट पीपल, तो डोंट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल. बट यस, वसुधा ब्रॉट इन अ वेरी ब्यूटीफुल लाइट इनटू दिस एरिया, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि भाई रिव्यू तो करते रहना चाहिए ना. जैसे एक वक्त पे आपको बुके पसंद है और आपका पति भूल जाता है बुके लाना, कैन यू, व्हाट विल यू डू इन दैट सिनेरियो? अपने लिए बुके खुद ले लो, हो सकता है फिर पति भी ले आए. यू लाइक इट, मोर फ्लावर्स मोर द मेरियर. yeah, Yeah, true. that is how upgrading yourself, it's all about upgrading your life. हाँ, बाकी मातम मनाना है, ड्रामा स्यापा करना है, वो तो हम आपस बतेरा टाइम है. हमारे जो सीरियल्स है वो भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं. तो कंटिन्यू पीपल, जो चेंज नहीं चाहते हैं, यू कैन बी वेयर यू आर, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके. Also, one final question: could you please tell about the marriage no marriage class that we are coming up Yeah, we with? have, again, if you would like to kind of enroll yourself to know more about what we do in marriage no marriage, you can ping us, you can DM us, and you can find out more. We have a website too. But marriage or no marriage is, अगर आपका वो confusion point है कि जहाँ पे आपको clarity नहीं मिल रही है, even in a marriage की रहो या नहीं रहो, या in a whether to marry or not to marry, or you have nobody at all and you're like confused about life, then this class could really open up your reality with whatever you're willing to choose. I've forgotten the date, beautiful date that I had only coined. But yeah, you will get the post, people. You can watch it. You can keep watching our posts, and it's sometime in this. It's in a few days, actually. We were. It's on 14th Feb. It's on 14th Feb. Oh right, it's on 14th है, Valentine's Day, of course. हमने सोचा कि लोग जो हैं, कपल्स जो हैं, वो इकट्ठे होते हैं, साथ आते हैं. वैलेंटाइन का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, तो लेट्स टॉक अबाउट मैरिज और नो मैरिज ऑन वैलेंटाइंस डे. So if you feel like talking about it or enrolling and having fun with the subject, please be our guest. Yo. So, any No, final thoughts you have regarding upgrading and upgrading money and communication. Oh yes, I mean final everything? thoughts. Yeah, final thoughts are, I personally would say don't give up on yourself, and अगर कोई चीज नहीं पसंद है तो पहले ही बोल देना चाहिए, rather than waiting and watching कि इससे क्या क्रिएट होता है. मैं चुप रहूंगी या चुप रहूंगा तो बदलाव आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. सो बिकॉज कभी कभी चुप रहने से मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट होती है, देन शांति क्रिएट नहीं होती है. तो अगर शांति चाहते हैं तो कम्युनिकेट करें. दैट्स व्हाट आई वुड से, बिकॉज उस शांति अशांति में भी आप क्रिएशन बहुत बड़ा सारा कर सकते हो, बिकॉज वो Yeah, chaos भी why होता है. suffer in silence? Why suffer in silence? Just speak up for yourself. And if you can't, there are multiple ways to talk. In the sense, मैसेज है, पर मैसेज भी मिसअंडरस्टैंड किया जा सकता है. वॉइस नोट्स है, वर्चुअल मीडियम है, लेटर है जो पुराने टाइम का हमारा होता था. ये करने से आप एटलीस्ट यू विल बी अपना अपना बोझ आप हटा देंगे, एंड यू विल बी द एनर्जी ऑफ गोइंग आउट एंड क्रिएटिंग वे मोर देन यू थिंक यू कैन. सो वो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए ओपन अप हो जाएंगी. So yes, be good to yourself is what I would want to say. Be kind to yourself. क्योंकि जो आप खुद पे काइंड नहीं हो तो किसी और पे भी नहीं हो सकते हो. It's all about you. That's for now.
That's for now, people. Be kind to yourself, and if you would like to get in touch for the class, please get in touch. 14 February, मैं भूल गई थी because I'm not too good with dates, by the way. But it's all about dating pretty well, you know, on Valentine's Day. Enroll yourself for a fun class on marriage or no marriage. Thank you so much. Thank you, Kavita. Thank Thank you you, so much. everyone. Bye. And keep your eyes open for the next week guest who is a fantastic guest. And we're going to be celebrating singlehood. You know, we're having some singles come over on the show. What fun is that going to be? It's going to Bye. be